हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इन दिस सेशन विल बी टेकिंग अप 3D मेंसुरेशन वाला क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन ज़ैट एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर्स। सो लेट अस स्टार्ट। पहले थोड़े से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से एंड देन वील डू द क्वेश्चंस इन 2 minutes. So firstly, formulas for cuboid. So there is a cuboid, length L, breadth B and height H. So the volume for the cuboid will be L into length into breadth into height. Okay, and total surface area क्या होगा? That will be 2 times length into breadth plus breadth into height plus length into height. That is total surface area. And since cuboid can also be a room, so in that case the lateral surface area of 4 walls, that will be equal to 2 times perimeter into height, perimeter of the base into height, 2 times length plus breadth into height. Clear? Longest diameter diameter बोल रहा हूँ, longest diagonal will be from one top to exactly the opposite top. तो square root of L square plus B square plus H square. Okay, and this is a typical example of a prism. Cuboid is what? A prism. And for any prism in general, where the base area is consistent across the height, in that case we can say कि prism का volume is equal to base area into height. Clear? And that's it. And the lateral surface area of prism is base perimeter into height. Now coming to the cube. Cube is a special case. तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो जाएगा, तो उसके लिए सेपरेटली डील करने की अभी फिलहाल ना वक्त है ना जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंडर. नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. सिलेंडर इज ऑल्सो प्रिज्म बिकॉज अक्रॉस द हाइट बेस एरिया इज कंसिस्टेंट. तो सिलेंडर में वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज बेस एरिया इंटू हाइट एच. एंड lateral surface area है curved surface area in case of a cylinder because curved surface होगा, so that will be equal to base perimeter which is 2 pi r into height. Total surface area में we'll also add the two bases that will be circular in nature, so उनका एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा. So total area will be equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. So 2 pi r into h plus r, that is total surface area. For cone is not a prism, it is a pyramid. Pyramid is एक साइड में बेस होगा और एक साइड में we'll have only a point, that's all. ठीक है. So in case of a pyramid the volume is 1/3 into base area into height. So for cone this will be 1/3 pi r square h. And if you compare the volumes of cylinder and cone, so for same radius and height the volume of cone is 1/3. And lateral surface area or curved surface area for this will be pi r into L, pi r L. ठीक है. और बेसिकली इन जनरल किसी भी पिरामिड के लिए दिस इज 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट. एंड टोटल सर्फेस एरिया विल बी lateral surface area प्लस वन साइड, क्योंकि बेस तो एक ही तरफ है, दूसरे साइड में तो एक टिप है सिर्फ. सो दिस विल बी pi r into L plus r. So we've covered cone, we have covered cylinder, we have covered cuboid, and then we have a sphere. For a sphere, volume is, if radius is r, so volume is 4/3 pi r cube. Total surface area is 4 pi r square. And if it is a hemisphere, in that case volume is just half, 2/3 pi r cube. And total surface area is 2 pi r square because half the sphere is there plus base area which is pi r square.
So total surface area is 3 pi r square. Now let us start the questions. First question of the day. So this is the first question. First question is, a non-flying ant wants to travel from the bottom corner to the diagonally opposite top corner of a cubicle room. Non-flying ant specifically has been mentioned because flying होगी तो फिर उड़ के पहुंच जाएगी भाई वो, ठीक है. So non-flying ant है, इसको ट्रैवल करना है बॉटम कॉर्नर से डायगनली ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम, और साइड गिवन है उस रूम का, दैट इज 2 मीटर. सो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस दैट द एंट नीड्स टू ट्रैवल. कितना मिनिमम डिस्टेंस एंट को ट्रैवल करना पड़ेगा? थिंक अबाउट इट. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी थॉट तो एक बार सोचो कितना होगा, क्या डिस्टेंस होगा. हर एक क्वेश्चन में मेक श्योर टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन ओनली सी द सॉल्यूशन. ओके, सो एंट लेट से इस साइड में है, ठीक है, दिस इज द एंट. अब उसको ट्रैवल करके जाना है तो एक सबसे लंबा तरीका क्या हो सकता है कि वो अलोंग द साइड्स जाए, ठीक है. और हर एक साइड क्योंकि 2 मीटर्स की है, एवरी साइड इज 2 मीटर्स. टोटल टाइम कितना लगेगा उस केस में? टोटल टाइम बोलो, टोटल लेंथ कितना ट्रैवल करेगी वो? 2 + 2 + 2. तो एक एंट है जो सबसे लंबे रास्ते से जा रही है, मतलब हर एक साइड से सबसे लंबा, मतलब लंबा तो इससे भी हो सकता है कि फिर वो घूम फिर के और भी नाचे, पर उतना ना भी करे तो भी वो हर एक साइड के अक्रॉस जाए, ठीक है. 2 + 2 + 2 दैट इज द वन वे. दूसरी कह सकती है नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे पता है कि एक वॉल पे डायगनली भी जा सकते हैं, तो वो कहेगी नहीं हम डायगनली जाते हैं. तो वो चूज़ कर सकती है कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऐसे डायगनली गए हम एंड देन अक्रॉस द एक साइड ट्रैवल कर दिया, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वे. इसको कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा? अब ये जो है ये लेंथ ट्रैवल करेगी, एक तो डायगनल पकड़ा है इसने और डायगनल की लेंथ है 2√2 बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है, दोनों साइड्स 2 है, 2√2. तो इसका टोटल लेंथ ट्रैवल हो जाएगा 2√2 प्लस एक साइड है 2√2 + 2. दैट इज. एक तीसरी स्मार्ट एंट है, उसको लगा कि हम डायगनल भी क्यों पकड़े भाई, हाँ, जब हमारे पास बेटर रास्ते हो सकते हैं तो बेटर रास्तों से जाएंगे. तो वो कह रही है कि मुझे तो दिख रहा है कि मुझे एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अपने रूम पे कंपेयर करो, एक पॉइंट से जाना है ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं समहाउ पहले तो जाऊँगी, डायग्राम में देख लेते हैं, ऐसे बिल्कुल मिडिल पॉइंट तक अपन पहुँचे और उसके बाद में फिर यहाँ से ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है. अब क्या ये रास्ता शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? थिंक अबाउट इट. शॉर्टेस्ट होगा कि नहीं होगा? बेसिकली इसके लिए, इसको समझने के लिए, इस रास्ते को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस अपने जो रूम है इसको खोल देते हैं, ठीक है, इसको खोल देते हैं, इसको पिचका देते हैं. तो अब हमारे जो दो सर्फेसेस हैं ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है. इन दोनों सर्फेसेस पे हम अगर सिर्फ फोकस करें सो दिस विल बिकम लाइक दिस. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. अब ये इस तरह के सर्फेसेस हो गए, दोनों ओपन कर दिया हमने. डायमेंशंस है 2 2, सब 2 है, ठीक है. ये वाला जो है हमारा अभी वर्टिकल में पहुंच गया, हॉरिजॉन्टल वाला, सो दिस इज ऑल्सो 2. एंड इस तरह से जा रही है कि बॉटम पॉइंट से वो गई है और ऐसे होकर डायरेक्टली जा रही है. तो अभी तो ये रेक्टेंगल बन गया, एक तरह का डायग्राम में रेक्टेंगल बन गया, ठीक है. अब इसी को आप फोल्ड करके वैसे देख रहे थे, रूम में देख रहे थे, ठीक है. तो इफेक्टिवली लेंथ कितना आया? दिस लेंथ विल बी, क्योंकि दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज अ राइट एंगल, तो दिस टोटल लेंथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 20. सो 2√5 meters is the answer. This is the smallest value. ये है, this is 6, this is 2 plus 2√2, यानी कि 2 into 1 plus √2 and this is 2 into √5, shortest. तो this is the best possible option. Option E will be the answer for this case. अच्छा सवाल था, क्लियर है. बाकी अगर फ्लाइंग एंट होती तब तो कोई समस्या नहीं थी, तो डायरेक्टली बिल्कुल डायगनली जाती. और कितना लेंथ होता है उसका? दैट लेंथ वुड हैव बीन स्क्वायर रूट ऑफ, अगर फ्लाइंग होती, इन केस ऑफ फ्लाइंग तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 12. क्लियर है, ठीक है. वो तो शॉर्टेस्ट होता है, बट वो तो तब पॉसिबल है जब उड़ने की शक्ति हो, जब शक्ति नहीं उड़ने की तो फिर तो चलना पड़ेगा.
Next question. The six faces of a wooden cube of a side 6 centimeters are labeled A, B, C, D, E and F. Three of these faces A, B and C are each adjacent to the other two and are painted red. The other three faces are not painted. तो तीन faces को हमने पेंट किया है, बाकी तीन faces को पेंट नहीं किया है. Wooden cube is neatly cut into 216 little cubes of equal size. How many of the little cubes have no sides painted? No sides painted. तो पहले तो क्यूब बनाते हैं अपन. अब इस क्यूब के ये जो तीन फेसेस हैं हमारे, हम इनको मान लेते हैं कि सिंस इट इज मेंशन थ्री ऑफ दीज फेसेस ए बी एंड सी आर ईच एडजेसेंट टू द अदर टू. तो ये तीनों के तीनों एडजेसेंट है एक दूसरे के. एडजेसेंट होने का मतलब क्या हुआ कि तीनों का कोई ना कोई एक पार्ट तो अक्रॉस, ठीक है ना, एक लाइन तो एटलीस्ट एक एज तो है जो कि कॉमन है, बल्कि एक से ज़्यादा ही है. क्लियर है? एक से ज़्यादा नहीं, एक ही एज है. तो तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं. और तीनों को हमने रेड पेंट कर दिया. अब अगर इनको रेड पेंट किया तो इनके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनको रेड नहीं पेंट किया है, बिकॉज तीन ही फेसेस को रेड पेंट किया गया है. ठीक है, तो थोड़े नाराज होंगे. बहरहाल ये तीन फेसेस ए बी एंड सी हैं जिनको हमने रेड पेंट कर दिया. और क्वेश्चन फिर ये कह रहा है इनको रेड पेंट करने के बाद में फिर हमने क्या किया, खच 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 इसको स्लाइस किया. 216 लिटिल क्यूब्स हैं. और क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ऐसे लिटिल क्यूब्स होंगे जिनका कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा. ठीक है, तो तीन ये जो क्यूब्स देख रहे हैं ये तो हमको दिख रहे हैं. अब दूसरे साइड से इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें वो अल्टीमेटली आंसर चाहिए, वो क्यूब्स चाहिए काटने के बाद में जिनका कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं है. ठीक है, सो अभी हम बैक साइड से देख रहे हैं. ठीक है, बैक साइड से इस पर फोकस कर रहे हैं. टोटल 6 क्रॉस 6 में अगर एक फेस को देखेंगे तो कटेगा बेसिकली. 216 क्या है, 6 का क्यूब है, यानी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 हर एक डायमेंशन को 6 पीसेस में काटा है, 6 पार्ट्स में काटा है. सो बेसिकली अब ये जो जब हम इसको बैक साइड से देखेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व ये जो टॉप वाला फेस है, ये जो टॉप वाला फेस है ये तो रेड है भाई, ये तो रेड है. ठीक है, सिमिलरली दिस फेस इज ऑल्सो रेड. और एक बैक वाला फेस रेड होगा, एक बैक वाला फेस रेड होगा जो यहां से नजर नहीं आएगा. ठीक है, अब अगर हमको कोई भी साइड पेंटेड नहीं चाहिए, अगर हमको कोई भी साइड पेंटेड नहीं चाहिए तो थिंक अबाउट इट, फिर हमको ये वाला क्यूब तो ये वाला जो छोटू क्यूब होगा ये नहीं चाहिए होगा, बिकॉज इसका टॉप पेंटेड है, टॉप पेंटेड है, इजंट इट सो. सिमिलरली इसका भी टॉप पेंटेड है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी. अब जो क्यूब्स है, अभी जो सबसे कॉर्नर वाला क्यूब है इसका टॉप भी पेंटेड है और एक साइड भी पेंटेड है. ये क्यूब्स भी नहीं चाहिए बिकॉज इनका साइड पेंटेड है एक. तो ये सारे क्यूब्स हट गए, तो बचे कौन से, बाकी बच गए, बाकी बच गए. यानी कि एक एक रिमूव करना है. 6 टोटल थे क्यूब्स, तो 6 - 1 हमारे काम के हैं. और सिमिलरली यहां भी 6 - 1 हमारे काम के हैं. तो एक साइड से हमने देखा तो 5 × 5 ये हमारे काम के हो गए. अब यही सेम लॉजिक लगेगा हमारा अक्रॉस द लेंथ, यानी कि बैक में भी टोटल 6 होंगे. अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे टोटल 6 है. ठीक है, इजंट इट सो. बट जो टॉप वाला सबसे टॉप वाला रो है हमारा, जो यहां से दिख रहा है, ठीक है, सिमिलरली अगर हम टॉप से देखेंगे तो सबसे पीछे वाला जो रो है, ठीक है, सबसे पीछे वाला रो, उस वाले रो को हमें नहीं लेना है. यानी कि अगेन वहां भी हमें 5 क्यूब्स ही लेने. तो 5 × 5 × 5 टोटल 125 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि नो साइड पेंटेड वाले होंगे. 125 विद नो साइड पेंटेड. क्लियर है? बचे कितने, टोटल 216 थे. 216 - 215 - 125 यानी कि 91 ऐसे क्यूब्स हैं जिनका कि एटलीस्ट एक साइड तो पेंटेड है, एटलीस्ट वन साइड पेंटेड. इज इट क्लियर? कम से कम एक साइड तो पेंटेड है. क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, और इनमें से कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके की दो साइड पेंटेड होंगे, और कोई ऐसा क्यूब होगा जिसका कि एक ही साइड, जिसके तीनों साइड पेंटेड होंगे. तो वो भी देख लेते हैं. जो क्यूब बिल्कुल इस कॉर्नर पे होगा, इसके तीनों साइड पेंटेड है, ऑल द 3 साइड्स आर पेंटेड. एंड दीज क्यूब्स अलोंग द एजेस, अलोंग दीज एजेस, ठीक, इनका एक साइड ये भी पेंटेड है और एक साइड ये भी पेंटेड है, तो इनके दो साइड्स पेंटेड है. तो क्यूब्स अलोंग द एजेस जो होंगे उनके लिए दो साइड्स पेंटेड होंगे, और दिस क्यूब अलोंग
दिस कॉर्नर, ओनली फॉर दिस कॉर्नर, इसका तीनों साइड्स पेंटेड होगा, बिकॉज हमने टोटल 3 साइड्स ही पेंट किए हैं। तो अगर इस नीचे वाले कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइड पेंट मिलेंगे, तीसरा वाला साइड पेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अलॉन्ग द एजेस जो होंगे वो भी उन एजेस में जहाँ पे कि हमने रेड पेंट किया हुआ है, वहाँ पे उन एजेस में वील सी कि 2 साइड्स पेंटेड वाले हमको क्यूब्स मिलेंगे, बाकी एजेस में थोड़ी मिलेंगे जिस एज में किया ही नहीं पेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हमारा इस क्वेश्चन में हो गया 125 विद नो साइड्स पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A rectangular swimming pool is 50 meters long and 25 meters wide. 50 meters length है और 25 meters width है rectangular pool की. Its depth is always the same along its width but linearly increases along its length from 1 meter at one end to 4 meter at the other. तो how much water in cubic meters is needed to completely fill the pool? ठीक है, तो rectangular swimming pool है और length है 50, width है 25, width is 25. So ऐसा कुछ शेप बनेगा, विथ 25 है और लेंथ 50 है एंड वी नो कि विड्थ में जो डेप्थ है दैट इज कंसिस्टेंट बट लेंथ में ऐसा नहीं है, लीनियरली बट इंक्रीज कर रही है। एक साइड पे सिर्फ 1 मीटर है तो एक साइड पे इट इज ओनली 1 मीटर, बट सेकेंड साइड पे दिस इज 4 मीटर्स, 4 मीटर्स। सो लीनियर इंक्रीज कर रही है, तो ऐसा शेप होगा कुछ। ठीक है, 3D में। अब हमको चाहिए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चाहिए, निकल आएगा। समस्या क्या है भाई, अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखें, सो दिस इज द एरिया दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इस फेस के बेस एरिया को, दिस इज द बेस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, क्योंकि यही एरिया कंसिस्टेंट होगा पीछे तक, इजंट इट सो? इसका एरिया कितना आने वाला है भाई? ये एक ट्रेपेजॉइड है, अगर ट्रेपेजॉइड की तरह देखो, दिस इज ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड, वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड या बेस एरिया, क्योंकि ये बेस है हमारा, बिकॉज चीजें इसके अक्रॉस कांस्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल बेस तो बॉटम वाला होगा, बट नीचे वाला वो बेस अलग है, ऊपर बेस अलग है, तो वो हमारे काम का बेस नहीं है, इसलिए हम इसको बेस मानेंगे। तो एरिया ऑफ दिस बेस एरिया या एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, एक्चुअल में इन दिस केस, बिकॉज विड्थ में चीजें कांस्टेंट है, डेप्थ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 1 + 4 इंटू 50 द लेंथ ऑफ ट्रेपेजॉइड और इंटू विड्थ दैट इज 25। तो दिस इज 1/2 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 25, तो 5/2 इंटू 1250 यानी 5 इंटू 625। सो आंसर विल बी 3125। ऑप्शन ई विल बी द आंसर। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, अगर ट्रेपेजॉइड में देखने में दिक्कत है तो दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ऊपर वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है, नीचे वाला पार्ट एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होगा 1 इंटू 50 और ट्रायंगल का एरिया होगा, ट्रायंगल का एक साइड है 50, तो 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू 50 इंटू दिस बिकम्स 4 - 1 यानी 3 यूनिट्स इंटू 3, एक ही बात है। ठीक है, और दिस मल्टीप्लाइड बाई विड्थ विच इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 6 ड्रम्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर। 6 ड्रम्स हमने यूज किए हैं स्टोर वाटर करने के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। 5 ड्रम्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी व्हाइल द 6th ड्रम हैज डबल द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ दीज 5 ड्रम्स। तो अगर एक ड्रम का कैपेसिटी हम मान लें V इज द कैपेसिटी, तो 5 ड्रम्स है जिनका कैपेसिटी है V और एक ड्रम है साथ में जिसका कैपेसिटी डबल है, यानी 1 × 2V है, 1 × 2V है। ओके, ऑन वन मॉर्निंग 3 ड्रम्स आर फाउंड हाफ फुल, तो 3 ड्रम्स आर हाफ फुल, 3 ड्रम्स आर हाफ फुल, 2 are found 2/3 full. D any drums 2/3 full, and 1 is found completely full. 1 drum is completely full. Now the question is saying it is attempted to transfer all the water to the smaller drums. सारा पानी जो है वो हमको स्मॉलर छोटे वाले ड्रम्स में यानी V वॉल्यूम वाले ड्रम्स में ट्रांसफर करना है। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉलर ड्रम्स आर एडिक्वेट टू स्टोर द वाटर। अब यहाँ पे देखो 2 केसेस बनने वाले हैं। हमें ये दिया है कि 3 ड्रम ऐसे हैं, 2 ड्रम ऐसे हैं, 1 ड्रम ऐसा है, बट दिस इज नोवेयर मेंशन्ड कि ये कौन से वाले ड्रम है, बिकॉज एक ड्रम जो हमारा है वो डबल कैपेसिटी का है।
तो ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि दैट वन पर्टिकुलर ड्रम विच इज ऑफ द डबल कैपेसिटी, वेदर दैट ड्रम इज हाफ फुल, 2/3 फुल और कंप्लीटली फुल। तो टोटल वॉल्यूम हमारा मिनिमम कब होगा? टोटल वॉल्यूम मिनिमम कब होगा? टोटल वॉल्यूम विल बी मिनिमम when 2V capacity drum is filled with minimum water। क्या ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं? मिनिमम वाटर उसमें होगा तब हमारा टोटल वॉल्यूम मिनिमम होगा। अदरवाइज केसेस बना लो कि वो हमारा पहला है दूसरा है, बट लॉजिक तो यही कहता है ना कि 2V कैपेसिटी वाला जो ड्रम है जब वो मिनिमम वाटर से फिल्ड होगा तो हमारा टोटल वॉल्यूम मिनिमम आने वाला है, और जब वो मैक्सिमम वाटर से फिल्ड होगा तब टोटल वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो पहला केस हमारा बना जबकि 2V कैपेसिटी वाला ड्रम इज हाफ फुल, वो हाफ फुल हो, ठीक है, वो हाफ फुल हो, बाकी सबका आप कहानी निकाल लेते हैं। तो मिनिमम हमारा वैल्यू आएगा दैट 2V कैपेसिटी इज हाफ फुल, यानी कि 2V इंटू 1/2 प्लस बाकी सारे तो V है, तो 2 बचे हाफ फुल, तो 2V यानी अभी भी 2V बचा। ये 2V कौन सा है? 2 इंटू V, 2 इंटू V इंटू हाफ प्लस 2 ड्रम है 2/3 फुल, यानी कि 2 इंटू V इंटू 2/3 प्लस 1 इज कंप्लीटली फुल। तो ये टोटल वैल्यू कितना है? 2V इंटू हाफ इज V प्लस V, 2V आ गया, 2V प्लस 4V/3 प्लस V। दिस इज 3V प्लस 4V/3, 3V प्लस 4V/3 यानी 3 प्लस 1.33, तो 4.33V वैल्यू आ गया हमारा। दिस इज मिनिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वैल्यू हमारा 4.33V है और स्मॉलर ड्रम्स को फिलअप करोगे तो 4 से ज्यादा ड्रम लगेंगे, 4.33 ड्रम लगेंगे एक्चुअल में, यानी कि 5 ड्रम्स लगेंगे, क्योंकि ड्रम हमारा फ्रैक्शन में थोड़ी होगा। तो डेफिनेटली 4 बट नॉट 3 तो आंसर नहीं हो सकता, 3 और 4 आंसर नहीं हो सकता। 5 मे बी एडिक्वेट डिपेंडिंग ऑन विच ड्रम हैड हाउ मच वाटर इनिशियली, ठीक है। 5 मे बी एडिक्वेट, इनएडिक्वेट लिख रहा है, इनएडिक्वेट, ओके, देखना पड़ेगा अभी। 3 बट नॉट 2 तो आंसर नहीं हो सकता, यानी सी और डी में से कोई हमारा आंसर ऑप्शन है। मिनिमम वैल्यू तो मिल गई। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जबकि 2V कैपेसिटी वाला ड्रम पूरा फिल्ड होगा, तब मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तब मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा? टोटल जो हमारे 3 हाफ फुल ड्रम है दे विल हैव कैपेसिटी ऑफ V, 3 इंटू V इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू V इंटू 2/3 प्लस ये जो एक कंप्लीटली फुल वाला है यही हमारा लार्जर ड्रम है, ठीक है। सो 1 इंटू 2V, टोटल कितना आ गया? दिस इज 3V/2 प्लस 4V/3 प्लस 2V, तो 4V/3 इज 1.33V, 1.5V, 1.5V प्लस 1.33V प्लस 2V, दिस इज 2.83, तो 4.83V टोटल वैल्यू आ गया। अगेन दिस इज लेस देन 5V बट ग्रेटर देन 4V है, ग्रेटर देन 4V भी तो है, तो डेफिनेटली हमें 5 ड्रम लगेंगे और 5 से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 5 में ही हमारा काम सफिशिएंट है, काम चंगा है। यहाँ पे भी मामला वही है, ग्रेटर देन 4V लेस देन 5V, तो 5 ड्रम्स ही एग्जैक्टली चाहिए हमको। 5 में भी इनएडिक्वेट लिखा है, तो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर, 5 बट नॉट 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कोई फॉर्मुला नहीं रहा, कुछ नहीं करना था, बट एक प्रॉपर समझ पे क्वेश्चन था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A gold ingot in the shape of a cylinder is melted and the resulting molten metal molded into a few identical conical ingots. If the height of each cone is half the height of the original cylinder and the area of the circular base of each cone is 1/5 that the circular base of the cylinder, then how many circular conical ingots can you get? अब ingot क्या है, इससे कोई अपना आंसर में फर्क नहीं पड़ता, सीधे समझो कि पहले एक सिलेंडर था जिसको हमने मेल्ट किया है, ठीक है, और फिर रिजल्टिंग मोल्टेन मेटल को मोल्ड किया है कुछ कोन्स में, दैट इज द होल क्वेश्चन। सो इनिशियली एक सिलेंडर है, नॉलेज से सिलेंडर का रेडियस r है, तो पाई r स्क्वायर, और हाइट h है, तो पाई r स्क्वायर h विल बी द वॉल्यूम। देन इट हैज बीन मोल्टेन, आई मीन मेल्टेड, और फिर जो मोल्टेन मेटल है उसको हमने उससे कुछ कोन बनाए। अभी जो कोन बने हैं इनका वॉल्यूम क्या होगा? अगर इनका रेडियस स्मॉल r है और हाइट स्मॉल h है, तो दिस विल बी 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल h, ये वॉल्यूम होगा एक कोन का। अगर सेम होते दोनों चीजें, थिंक अबाउट इट, अगर दोनों का रेडियस और हाइट सेम होता तो कितने कोन बन जाते? तो 3 कोन बनते हमारे, बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम 1/3 है, ठीक है। तो अगर सब कुछ सेम होता तब भी हमारे 3 कोन बनते, इजंट इट सो, है कि नहीं? तब भी 3 कोन बनते। तो ये तो पक्का है कि इन एनी केस हमारे 3 कोन तो फिर भी बनने थे, ठीक है। तो इन जनरल भी सिर्फ हमने
सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाए तो एक की बजाय 3 बन जाएंगे। फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, साथ में कुछ चीज और ऐड कर रहा है कि हाइट ऑफ ईच कोन इज हाफ द हाइट। अगर हाइट आधी हो गई, हाइट को हाफ कर दिया हमने, तो यानी कि डबल बन जाएंगे। इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर हाइट को छोटा करोगे तो डबल बन जाएंगे कोन्स, इज दैट इट सो? बिकॉज हाइट यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, ठीक है। तो अगर हाइट को हाफ कर दिया तो इसकी वजह से कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स डबल हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ ईच कोन इज 1/5। तो एरिया को हमने कितना कर दिया, 1/5 कर दिया है। तो अगर एरिया को 1/5 कर दोगे तो उसकी वजह से 5 कोन बन जाएंगे सेम बेस एरिया के, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। सो दिस विल बी टोटल कितने कोन्स बने, 30। 3 इंटू 2 इंटू 5, 30 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसमें तो ऐसे फिर किया जा सकता है कि एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू हाइट हम कर रहे हैं हाफ, यानी कि हाइट इज h/2 और बेस एरिया इज 1/5 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? 1/5 पाई आर स्क्वायर है बेस एरिया फॉर वन कोन। ये एक कोन का वॉल्यूम आ गया और टोटल वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो डिवाइड कर दोगे पाई आर स्क्वायर एच में इस वैल्यू को, तो 1/3। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ये भी बता देते हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एच से एच बचा 3 इंटू 2 इंटू 5 जो कि न्यूमरेटर में जाएगा अल्टीमेटली, तो 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स 2 liters टू पेंट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का सर्फेस एरिया कहता है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फेयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने के लिए लग रहा है हमें 2 liters। Now the question is, if the solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all the surfaces of these 4 pieces? अगर 4 pieces में हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, काट रहे हैं, टमाटर है समझ लो, ठीक है। तो इसको कट कर रहे हैं अपन, इस एक साइड से कट किया टॉप से, तो 2 सर्फेसेस हमारी बनेंगी, 2 सर्फेसेस जिनका एरिया सेम होगा, और ये एरिया कितना होगा, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। तो एक साइड से स्लाइस करने पे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये एडिशनल क्रिएट हो जाएगा, फिर दोबारा से स्लाइस करोगे, एक बार और कट मारोगे, तो इस बार सेकंड कट मारने में फिर से हमारी 2 सर्फेसेस बनेंगी, और इनका भी एरिया कितना होगा इन दोनों सर्फेसेस का, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर। सो यहां से भी हमारा 2 पाई आर स्क्वायर एड अप हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया में। तो इनिशियली तब टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, नाउ दीज 4 पाई आर स्क्वायर इज ऑल्सो एडेड, टोटल सर्फेस एरिया विल नाउ बी 8 पाई आर स्क्वायर। 4 स्लाइसेस का टोटल सर्फेस एरिया विल बी 8 पाई आर स्क्वायर। सो कितना लगेगा, डबल लगेगा एकदम, 2 लीटर लगा था 4 लीटर लगेगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर यही चीज हम एक को देखना चाहें, बिकॉज क्वार्टर स्फेयर होगा एक तरह से, सो क्वार्टर स्फेयर का शेप कैसा बनेगा, कुछ ऐसा होगा। अब एग्जैक्ट शेप तो देखो नहीं बना पाऊंगा, इतना 3D अपना अच्छा नहीं है आर्ट, ठीक है, बट समझ जाओगे कि दिस इज लाइक दैट, ऐसा कुछ बनेगा मामला, ठीक है। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, एक पीस की बात कर रहे हैं। ऑल्सो बेस एरिया दिस इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया था एक स्फीयर का, तो ये जो कर्व्ड सर्फेस एरिया है दिस विल बी पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4, इफेक्टिवली टोटल कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी टोटल आ रहा है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ वन पीस इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पीसेस का आएगा 8 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cone of radius 4 cm with a slant height of 12 cm was sliced horizontally. तो एक कोन है जिसकी रेडियस 4 cm है, स्लैंट हाइट है 12 cm एंड इट इज स्लाइस्ड हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली इसको कट मारा हमने, रिजल्टिंग इनटू स्मॉलर कोन एंड अ फ्रस्टम। If the ratio of the curved surface area of the upper smaller cone and the lower frustum is 1:2, what will be the slant height of the frustum? तो एक बड़ा सा कोन है हमारा, अब इस कोन को हमने बीच से कट मारा। एक बात बताओ, जब कोन को कट करोगे, कोन का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, तुम बीच से कट करोगे तो क्या टोटल, तो जो लैटरल सरफेस एरिया है यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या वो सरफेस एरिया हमारा क्रिएट होगा क्या? थिंक अबाउट इट।
कट करने की वजह से बेस का एरिया बढ़ेगा, मतलब कि एक दो नए बेसेस क्रिएट होंगे, एक ऊपर वाले कोन का बेस होगा, एक फ्रस्टम का बेस होगा टॉप का, तो दो नए बेसेस क्रिएट होंगे। बट क्या कर्व्ड सरफेस एरिया क्रिएट होगा? वो तो उतना ही रहेगा ना जितना ओरिजिनल कोन का था, जितना ओरिजिनल कोन का टोटल लैटरल सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया था, उतना ही रहेगा ना, इजंट इट सो? तो अगर हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्रिएट नहीं हो रहा है तो वी कैन से कि अगर 1:2 का रेशियो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द अपर स्मॉलर कोन एंड लोअर फ्रस्टम, 1:2 का रेशियो है, यानी कि अगर 1 यूनिट है अपर स्मॉलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 यूनिट है लोअर फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल कोन का कितना होगा? 3 यूनिट्स होगा, इजंट इट सो? तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अपर स्मॉलर कोन एंड लोअर फ्रस्टम, वील टॉक अबाउट द छोटू वाला कोन, यानी कि कोन स्मॉलर और कोन टोटल। और दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:3 का, दिस 3 इज 1+2, यानी कि स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? ओके, सो 1:3 का रेशियो है और दोनों कोन सिमिलर है, जैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं वैसे कोन सिमिलर है, कोन सिमिलर है, ठीक है? तो अगर इनको हम एक साइड से देखें तो बेसिकली क्या है, दिस इज क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, आर पे डिपेंडेंट है, एल पे डिपेंडेंट है। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एक तरह से, ठीक है, अगर इमेजिन करें दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल एल ही है वैसे दोनों में, तो लेट अस से दिस इज एल डैश एंड ये पूरा है स्मॉल एल, ठीक है? तो दोनों का रेशियो सेम होगा, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, दैट इज द केस। एंड लेट अस से इफ दिस इज के, इफ दिस इज के, तो हमारा रेशियो आएगा कर्व सरफेस एरिया का, वो कितना होगा? पाई आर एल डैश अपॉन पाई कैपिटल आर एल। तो दिस इज नथिंग बट पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू एल डैश बाई एल, यानी कि के स्क्वायर, के स्क्वायर। और वही रेशियो में गिवन है के स्क्वायर का रेशियो, दैट इज 1:3। तो अगर के स्क्वायर का रेशियो 1:3 है तो यहां से के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा स्लैंट हाइट का रेशियो मिल जाएगा हमको, दैट विल बी 1:3। और ये छोटू वाला कोन का स्लैंट हाइट इज एल डैश और एल डैश एल का हमें रेशियो मिल गया, दैट इज 1:3। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? और फिर हमें गिवन क्या है? स्लैंट हाइट गिवन है कोन का, यानी √3 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12, √3 यूनिट्स इज इक्वल टू 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/√3। स्मॉलर कोन की स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 12/√3। रेडियस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 12/√3 वैल्यू आ गया, बट क्वेश्चन में हमसे स्लैंट हाइट कोन की नहीं पूछी है, स्लैंट हाइट फ्रस्टम की पूछी है। तो फ्रस्टम की स्लैंट हाइट विल बी कोन की स्लैंट हाइट माइनस स्मॉलर कोन की स्लैंट हाइट, तो 12 माइनस 12/√3। और 12/√3 क्या होगा? दैट विल बी 12 इज 4 इंटू √3 या फिर 4 इंटू 3, तो दिस इज 12 माइनस 4√3। आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है? अब ये सब चीज़ें समझने के लिए हमने लिखी है, इनको एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम में सीधे आपने लिखा 1:3 एंड देन वी नो कि R इंटू एल इज का रेशियो है 1:3 का, और दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो स्लैंट हाइट है उसका रेशियो होगा 1:√3 का, इसको सीधे से रूट लेना है। और यही रेडियस का भी रेशियो होगा, यही दोनों की रेडियस का भी रेशियो होगा 1:√3 का। इज इट क्लियर? आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है हाँ कि जो टॉप वाला एरिया है, टॉप वाली रेडियस है वो क्या होगी, ये भी पूछ सकता है, स्मॉल आर की वैल्यू पूछ सकता था। तो वहाँ भी सेम लॉजिक होता है हमारा, हमें पता है कि √3 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा उसके से 4/√3, तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस is 200 cubic centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज 200 cubic centimeter, 200 cc. And we've been given the height of the pyramid is 13 centimeter. What will be the length of the slant edges, i.e. the distance between the apex and any other vertex rounded to the nearest integer. ठीक है भैया। सो स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बनाते हैं पहले नीचे। सो दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। और फिर सारे सबसे एक टॉप पे गया, समझ लेना, ठीक है? थोड़ा सा डायग्राम इज नॉट अप टू द स्केल, बट भावनाओं को समझना। तो दिस इज अवर पिरामिड, ठीक है? ये पिरामिड है, ये अपना टॉप है। अब हमें गिवन क्या है? हमें दिया है हाइट ऑफ द पिरामिड इज गिवन, हाइट ऑफ द पिरामिड इज गिवन। हाइट क्या होगी? हाइट जब हम इस टॉप को मिलाएंगे मिडिल पॉइंट से, दैट इज अवर हाइट, दैट इज अवर हाइट, ठीक है?
और अब इमेजिन करो कि इफ वी इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हाइट हमें गिवन है, हाइट 13 गिवन है, ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर है तो लेट अस से दिस इज ऑल दीज साइड्स आर ए एंड ए, क्लियर है। तो अगर ये साइड्स हमारी सारी की सारी ए हैं, दिस इज डायगोनल, डायगोनल है, तो डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, पूरे डायगोनल की लेंथ क्या आएगी, साइड्स ए हैं, डायगोनल की लेंथ होगी a√2। बट यहां पे जब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में, तो हमें सिर्फ इतनी लेंथ से मतलब है, isn't it so? सिर्फ इस लेंथ से मतलब है, तो ये हाफ लेंथ कितना होगा, दिस विल बी a√2/2, a√2/2 विच इज a/√2। बट ए तो कहीं पे गिवन नहीं है, बट ये समझ में आना चाहिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से सेपरेटली बना लेते हैं। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, a/√2 इज वन साइड, अदर साइड इज h। तो जो स्लैंट हाइट है हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में स्लैंट हाइट ही तो पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द स्लैंट एज, तो जो स्लैंट एज है हमारी कितना होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस a²/2, क्लियर, ओके फाइन। वॉल्यूम क्या होगा इस पिरामिड का, वॉल्यूम किसी पिरामिड का क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, दैट वी नो, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इज a², हाइट इज h वी नो, a² वी डोंट, h इज 13, तो दिस विल बी 1/3 इंटू a² इंटू 13 इज इक्वल टू 200, सो a² विल बी इक्वल टू 600/13। बस अब पुट कर देना वैल्यू यहाँ पे, काम खत्म है अपना। सो दिस वैल्यू विल बी √of h², और h हमारा 13, तो h² विल बी 169 प्लस a²/2, और a² है 600/13, यानी कि a²/2 होगा 300/13। अब 300/13 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 13 2 260 यानी कि 20, और बचा 40 यानी कि 23 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो √of 169 प्लस 23 अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 192, और हमें पता है कि 196 का होता है 14, तो और अप्रॉक्सीमेटली 14 आ रहा है, बिकॉज इंटीजर में ही बताना है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट इज अ टैंक इनिशियली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर क्रॉस 120 सेंटीमीटर क्रॉस 100 सेंटीमीटर हैज 1281600 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इन इट। इतना वाटर है इनमें। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द टैंक इज फुल अप टू द ब्रिम। जब तक पूरा का पूरा टैंक फिलअप नहीं हो जाता ब्रिम तक, तब तक हम उसमें पोरस ब्रिक्स डालते जा रहे हैं, जब तक पानी बहना ना चालू हो जाए, ठीक है। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इन ब्रिक्स में एक खास बात है कि ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी ब्रिक्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये कितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना उनका वॉल्यूम है दिख रहा है, ठीक है, डायमेंशंस के हिसाब से, उसका 1/10 वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसका 1/10 वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उतना उनके अंदर स्पेस रहता है कि उतना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 20 क्रॉस 6 क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी पुट इन द टैंक विदाउट स्पिलिंग ओवर द वाटर। कितने ऐसे ब्रिक्स को हम डाल सकते हैं। तो एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि लेट अस से ऑलरेडी हमारे टैंक में पानी फिलअप है इस लेवल तक। अब एक ब्रिक को हमने डाला, ठीक है, 1/10 वॉल्यूम ऑफ वाटर ये अब्जॉर्ब कर रहा है। तो लेट अस से ब्रिक का वॉल्यूम हमने मान लिया 10 यूनिट्स। तो जैसे ही तुम ब्रिक को डालोगे तो क्या होगा, ये 10 यूनिट का तुमने ब्रिक डाला, तो अगर ये ब्रिक कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता तो वॉल्यूम 10 यूनिट से बढ़ जाता। इफ दिस ब्रिक हैड नॉट एब्जॉर्ब्ड एनी अमाउंट ऑफ वाटर, इन दैट केस जो हाइट है हमारी दैट वुड हैव इंक्रीज्ड बाई, हाइट तो इंक्रीज नहीं करती बट वॉल्यूम वुड हैव इंक्रीज बाई 10 यूनिट्स, वॉल्यूम वुड हैव इंक्रीज बाई 10 यूनिट्स। बट हुआ क्या, जैसे इस ब्रिक को हमने पानी में डाला इट वेंट, और इसने 1/10 वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि इफेक्टिवली वॉल्यूम बढ़ा 10 से, बट इसने एब्जॉर्ब कर लिया 1/10 ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कम कर दिया ना 1 से। तो नेट में चेंज कितना आया, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा 9 से। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि 10 यूनिट्स हमने डाला वॉल्यूम, 1 यूनिट इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज इज 9 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि नेट चेंज आएगा 9/10 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, दैट विल बी द नेट चेंज। इज इट क्लियर, ठीक है, 9/10 वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक दैट विल बी आवर नेट चेंज, दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ वी नो टैंक का मेजरमेंट दिया है और टैंक में कितना पानी है वो दिया है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जितना मेजरमेंट है उतना पानी नहीं है, यानी कि जितना पूरा कैपेसिटी है उतना पानी फिलअप नहीं है, पानी कम है, देयर इज स्टिल अ कैपेसिटी व्हिच इज
वैकेंट देयर, जहां पे कि हम ब्रिक्स डाल के उसको फिलअप करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना है टैंक का? टोटल वॉल्यूम इज 150 इंटू 120 बाई 100। टोटल वॉल्यूम इज 150 इंटू 120 इंटू 100, दैट इज 50 इंटू 12 180, एंड देन देयर आर 1 2 3 4 4 0 और लगाने हैं। ओके, सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम। आउट ऑफ दिस 21281,600 इतना इज ऑलरेडी फिल्ड, ऑलरेडी फिल्ड। दिस इज टोटल कैपेसिटी, सबट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग वाला मिल जाएगा हमको। सो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 0 से गया 6, 4 बचा, और यहाँ पे 9 - 1 8, ठीक है। तो क्या वैल्यू आया? दिस इज 51,5184,00 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज कैपेसिटी अवेलेबल, कैपेसिटी अवेलेबल। ओके, नाउ वी हैव टू फिल दिस विद ब्रिक्स, और एक ब्रिक का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक is 20 into 6 into 4, 6 into 4 is 24 into 20 is, that is 480 centimeter cube is the volume of one brick. Now bricks हमने डालना शुरू किया। लेट अस से हम टोटल इसमें कितने ब्रिक्स डाल पाएंगे पता नहीं हमको, ठीक है। B ब्रिक्स हमने डाले टोटल, बट एक ब्रिक की वजह से कितना फर्क पड़ने वाला है? 9/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। तो एक ब्रिक की वजह से फर्क पड़ेगा 9/10 इंटू 480, और टोटल वॉल्यूम जितना अवेलेबल है उतना ही तो डाल पाओगे, तो 518400। अब थोड़ा बहुत काट पीट करनी है। सो फ्रॉम दिस 0 ये 0 गया, अब 48 से काटोगे, 48 से काटना तो नहीं चाहिए, चलो 24 से काटते हैं पहले। 24 से काटा तो यहाँ पे बचा 24 2 ज़ा 48, फिर बचा 38, 24 1 ज़ा 24, 144, 6 टाइम्स गया 21600। अब 2 से दिस विल बी 10800, 9 से भी जाएगा, 9 से 1200। So B is equal to 1200 will be our answer. Option C. Is it clear? ठीक है, ओके, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सवाल था, कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है, उसको रिजॉल्व करेंगे। Next question is, a solid metal cylinder of 10 cm height and 14 cm diameter is melted and recast into two cones in the proportion of 3:4. एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसका की हाइट है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। इसको हमने मेल्ट किया और रिकास्ट किया है दो कोन्स में इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4, कीपिंग द हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट सेम रखी है हमने। व्हाट कुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर? ओके, सो वॉल्यूम कितना है इनिशियली? पाई r²h, यानी कि पाई इंटू आर कितना है? 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 10। सो टोटल वॉल्यूम आ रहा है हमारा 490 पाई, और इसको दो पार्ट से ब्रेक किया 3:4 के रेशियो में। एक पार्ट होगा हमारा 3/7, 3:4 में अगर दो पार्ट्स में दो हमने सेपरेट इससे कोन्स बनाए हैं 3:4 के रेशियो में, तो एक पार्ट का क्या आएगा हमारा वॉल्यूम? 3/7, यानी कि 1 यूनिट कितना होगा? 3/7 इंटू 490 पाई, तो 7 से आया 70, तो 210 पाई। अदर पार्ट विल बी 280 पाई, 210 पाई एंड 280 पे। और पहले वाले का वॉल्यूम कितना है? ये हमारा पहला कोन ही तो है, तो 1/3 पाई r²h, और h 10 ही है अपना, h 10 है, तो 10 से ये 0 चला जाएगा, यानी कि पाई r² कितना आएगा? पाई r1² लिख लेते हैं इसको, तो पाई r1² विल बी इक्वल टू 63 पाई। एंड बाय द सेम लॉजिक यहां पे जब लगाएंगे तो पाई r2² इंटू 10, 10 से 0 गया, तो पाई r2² विल बी इक्वल टू 84 पाई। ठीक है, पाई r1² आ गया 63 पाई, और पाई r2² है 84 पाई। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। ओके, पाई r1² हो गया 63 पाई, पाई r2² इज 84 पाई। नाउ व्हाट कुड बी द परसेंटेज इन द फ्लैट सरफेस एरिया? तो इनिशियली हमारा सिलेंडर था, तो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स बेस एरिया 2 पाई r², और r हमारा था 7², यानी कि 2 इंटू 49 पाई, और उससे बनाए हमने कोन। अरे यार
क्या ये बार बार नॉइज कर रहा है? कोन्स, पहले कोन का बेस एरिया है 63 पाई और एक ही बेस होगा, दूसरे में भी एक ही बेस होगा, टोटल कितना आ जाएगा बेस एरिया 63 पाई प्लस 84 पाई, तो 147 पाई, एंड दिस इज 98 पाई। 98 पाई से हमने हमारा बेस एरिया या फ्लैट सरफेस एरिया चेंज हो गया 147 पाई पे, यानी कि प्लस 49 पाई इंक्रीज हुआ है, विच इज हाफ ऑफ इनिशियल यानी कि 50% का चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया 50% का, तो आंसर विल 50%, ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि इतना करने की ऐसा इस क्वेश्चन में जरूरत थी नहीं। ठीक है, किया इसलिए हमने समझने के लिए। इनिशियली हमारा सिलेंडर था, ठीक है, सिलेंडर का था, तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, फ्लैट सरफेस एरिया। फिर इस सिलेंडर से हमने सेम वॉल्यूम से या मेल्ट करके हमने बनाए हैं दो कोन। हाइट को चेंज नहीं किया है हमने, हाइट को चेंज नहीं किया है, तो अगर हाइट को चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, अगर हाइट को चेंज नहीं किया तो कोन बनाओगे तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो चेंज नहीं की हमने। सो इफेक्टिवली अगर हाइट सेम रहा तो हाइट को उड़ा दो, जो बचा हुआ है उसका भी रेशियो वैसे ही आएगा ना, क्योंकि हाइट तो मैटर ही नहीं कर रही, और क्योंकि कोन्स का वॉल्यूम जो है भाई ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम ही रखा है हमने, वॉल्यूम सेम रखा है, दो कोन बनाए हैं, ठीक है, दो कोन बनाए हैं, तो इफेक्टिवली जो हमारा, एक बात बताओ कि जो उनका बेस एरिया होगा, दोनों का बेस एरिया का सम, क्योंकि दो कोन बनाया है तो क्या हो जाएगा, इससे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, दिस विल बी 1/3 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। बट सिंस दिस पाई आर स्क्वायर हैज नॉट चेंज्ड, तो अल्टीमेटली इन दोनों का सम कितना आने वाला है, ये बताओ, 3 टाइम्स हो जाएगा ना, 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हाइट को हमने चेंज नहीं किया है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, सो दिस इज इक्वल, ये चीज इक्वल है, इजंट इट सो? तो अगर एक 1/3 बाहर आ रहा है तो दिस शुड बी 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, तभी तो इक्वल हो पाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये 3 उधर चला जाएगा, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स हो गया हमारा जो बेस एरिया है, वो 3 टाइम्स हो गया, यानी कि बेस एरिया का रेशियो क्या है 1:3 का। दोनों कोन्स को सेपरेटली डील मत करो, छोड़ो उसको, ठीक है, हमें 3:4 से कोई मतलब नहीं है, 3:4 है, 2:5 है, 2:9 है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। हमें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि जो चेंज आ रहा है बेस एरिया के में, तो 1 से 3 हो गया बेस एरिया, बट प्रॉब्लम ये है जो 1 हमारा बेस एरिया है, यानी पाई आर स्क्वायर की ये जो वैल्यू है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इनका रेशियो है 1:3 का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, हमको ये पता है कि सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, तो ये अगर 1 यूनिट एरिया है एक का, तो 2 यूनिट हमारा टोटल बेस एरिया हो जाएगा, टोटल फ्लैट सरफेस एरिया हो जाएगा। बट कोन में एक ही बेस है तो ये 3 ही रहेगा, तो रेशियो 2 से 3 हो गया है, यानी कि 2 पहले था अब हो गया है 3, यानी 1 का चेंज आया है, प्लस 1 का चेंज आया है, 50% का चेंज आया है, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। क्लियर है? तो अगर ये इस समझ के साथ में करोगे, रेशियो के साथ में करोगे, तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इसलिए ये समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम उन कैलकुलेशंस को करें जो कैलकुलेशन करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है हमको। एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि हम ऐसी कैलकुलेशंस में अपना टाइम वेस्ट करें। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the question is, diameter of the base of a water filled inverted right circular cone is 26 centimeter. A cylindrical pipe 5 mm in radius is attached to the surface of the cone at a point. The perpendicular distance between the point and the base, the top, is 15 centimeter. The distance from the edge of the base to the point is 17 centimeter along the surface. If water flows at the rate of 10 meters per minute through the pipe, how much time would elapse before water stops coming out of the pipe? Okay. So यहाँ पे क्या है? There is a water filled inverted right circular cone. जिसका रेडियस इज गिवन, डायमीटर 76 है, यानी रेडियस होगा 13, और दिस इज द कोन। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप अटैच्ड है, अटैच टू द सरफेस ऑफ द कोन एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पे हमें नहीं पता, रेडियस से, दिस इज द पॉइंट जहां पे कि अटैच्ड है। नाउ दिस इज गिवन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बेस इज 15 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द बेस इज 15 सेंटीमीटर, सो दिस इज 15। This is also given that distance from the edge of the base to the point is 17 centimeter, यानी कि edge ये वाला है, so edge से base तक this is 17। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, this is 15, एक साइड 15 है, एक साइड हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, तो ऊपर वाला पोर्शन ये कितना आने वाला है, this will be equal to 8, क्योंकि 8, 15, 17 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है अपना।
ठीक है, डेफिनेटली ऊपर जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगा अपना, और अगर 8 आ रहा है तो बचा हुआ पोर्शन कितना है, दिस विल बी, ये बचा हुआ पोर्शन दिस विल बी इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें रेडियस मिल जाने वाली है अपने नीचे वाले पोर्शन की, दिस इज इक्वल टू 5, ये रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन, स्मॉलर छोटू वाला कोन, या फिर फ्रस्टम का जो स्मॉलर रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट थ्रू द पाइप, हाउ मच टाइम वुड इलैप्स बिफोर वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट ऑफ द पाइप। तो वाटर कब स्टॉप करेगा, देखो ऊपर जो फ्रस्टम में पानी भरा है वो तो पूरा का पूरा इस पाइप से निकल सकता है, बट जो नीचे के छोटू वाले कोन में पानी भरा हुआ वो तो इस पाइप से नहीं निकल पाएगा, बिकॉज पाइप का लेवल उस पानी से ऊपर है। तो फॉर दिस पाइप द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फ्रस्टम, वॉल्यूम वाटर इन द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम, फ्रस्टम के वाटर का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अपर रेडियस इज 13, लोअर रेडियस इज 5 एंड दिस हाइट इज इक्वल टू 15 ऑल्सो। क्लियर है। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई इंटू हाइट है 15, कैपिटल आर है 13 तो 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 5, so this value will be 1/3 pi into 15, 169 plus 25 plus 65, 1/3 into 15 से 3 से 5 गया, 5 पाई बचा, तो इस वाली 5 पाई और अंदर बचा 25 प्लस 65 यानी 90 प्लस 169 यानी कि 259, तो 5 पाई इंटू 259 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। इतना वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब है जितना पानी निकल सकता है, ठीक है। और निकलेगा किससे, इस छोटू वाले पाइप से, और इसका बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है 5 mm रेडियस है, तो बेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी चीजें रखेंगे, ऐसा नहीं है कुछ सेंटीमीटर कुछ मिलीमीटर में, तब तो हो गया काम अपना, सवाल कभी सही नहीं हो सकता, तो सारी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब ये सेंटीमीटर में पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये एरिया आ गया बेस एरिया इसका। स्पीड गिवन है वाटर का 10 मीटर्स पर मिनट, लेट अस अज्यूम कि t मिनट्स में सारा पानी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 1 मिनट में पानी कितना निकलेगा, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बेस एरिया इज पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, और हाइट है 10 मीटर्स, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 1000 सेंटीमीटर। दीज टू शुड बी इक्वल, इतना ही तो पानी निकाल पाएगा जितना कि फ्रस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। तो पाई से गया पाई, फिर ये 4 से दिस विल बिकम 250, सो आवर आंसर विल बी टी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 259 डिवाइड बाई 250, 5 से बचा नीचे 50, 259 में 50 विल बी इक्वल टू 5.18 मिनट्स। Our answer will be 5.18, ऑप्शन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन 5.2। इज इट क्लियर, ठीक है, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल था, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 48 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, द शैलो एज ऑफ द पूल इज 1 मीटर डीप, for every 2.6 meter that one walks up the inclined base of the swimming pool, one gains an elevation of 1 meter. एक 1 मीटर का हमें एलिवेशन मिलता है for every 2.6 meter that one walks up. What is the volume of water in cubic meters in the swimming pool? Assume that the pool is filled up to the brim. Okay, so dimensions है 48/20. Shallow edge of the pool is 1 meter deep for every 2.6 meters. So and so कहानी is there. So this is 20, this is 48. शैलो एज है 1 मीटर की, एंड फॉर एवरी 2.6 मीटर्स, सो बेसिकली इसका सेपरेट डायग्राम पहले बना के समझ लेते हैं। फॉर एवरी 2.6 मीटर्स दैट वन वॉक्स अप द इंक्लाइंड बेस ऑफ द स्विमिंग पूल, यानी कि बात कर रहा है इंक्लाइंड बेस पे अगर 2.6 मीटर्स कोई वॉक अप करे, वन गेन्स एन एलिवेशन ऑफ 1 मीटर, यानी कि एलिवेशन ऑफ 1 मीटर मिल जाएगा। सो दिस इज द 1 मीटर, कि अगर 2.6 मीटर्स किसी ने वॉकअप किया, वॉक डाउन किया बेसिकली, तो 1 मीटर का एलिवेशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग 2.6 1, सो यहाँ पे एक बार देखो, दिस इज 13, दिस इज 5, दिस हैज टू बी 12, 5 और 13 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो डेफिनेटली दिस विल बी 2.4 मीटर, यानी कि हर 2.4 मीटर पे 1 मीटर का डेप्थ में इंक्रीज है, 2.4 मीटर पे 1 मीटर का डेप्थ में इंक्रीज है, और टोटल हमारी लेंथ कितना है 48 मीटर्स है, टोटल 48 मीटर्स यानी मल्टीप्लाई बाय 20 है,
यानी कि डेप्थ में इंक्रीज कितना होगा, टोटल 20 का होगा, तो डेप्थ टोटल विल बी 21, ये शेप बनेगा हमारा। क्लियर है? बाकी तो क्वेश्चन वैसा ही है जैसे क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, तो टोटल हमें वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, कितना होगा, वॉल्यूम एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकाल लो और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस ऑब्वियसली, तो 1 + 21 इंटू दिस इज 48 इंटू 48 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट विल बी आवर टोटल वॉल्यूम। वही तो पूछा है क्वेश्चन में, तो कितना आएगा, दिस विल बी 11 22/2 11 इंटू 48 इंटू 2 यानी 11 इंटू 960, तो 9600 प्लस 960 10,560, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम, अ फार्मर मैनेज्ड टू ग्रो शेप्ड वाटरमेलन्स इनसाइड ग्लास केसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। द शेप्स ही यूज्ड वर, एक परफेक्ट क्यूब है, एक हेमिस्फेयर है, एक क्यूबॉइड है, एक सिलिंड्रिकल है, along with the normal spherical shaped watermelons. Thickness of the skin was the same for all the shapes. Each of the glass cases was so designed that the total volume and the weight of all the watermelons would be equal irrespective of the shape. A customer wants to buy watermelons for making juice for which the skin of the watermelon has to be peeled off. So and therefore the skin is the waste. Which shape should the customer buy? तो जो भी शेप्स होंगे सब में स्किन होगा, और साथ में हमें क्या गिवन है कि थिकनेस ऑफ द स्किन वॉज सेम फॉर ऑल द शेप्स। थिकनेस सेम है, तो अगर हमारा कोई भी रैंडम शेप, अगर हम किसी भी शेप की बात कर रहे हैं, तो कितना वेस्ट होने वाला है उसमें, वेस्ट कितना होने वाला है भाई, टोटल वॉल्यूम v है और टोटल वॉल्यूम और वेट सेम है सबका। इट इज सो डिजाइन दैट टोटल वॉल्यूम एंड वेट आर सेम फॉर ऑल द वाटरमेलन्स। तो अगर टोटल वॉल्यूम v है जो कि सबके लिए सेम होगा, v में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे, क्या वेस्ट होगा, वेस्ट होगा स्किन, स्किन इज द वेस्ट, और थिकनेस ऑफ स्किन भी सेम है। स्किन कहां से निकालेंगे भाई, जो टोटल सरफेस पे होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय, अगर थिकनेस ऑफ द स्किन इज t इज थिकनेस ऑफ द स्किन जो कि सबके लिए सेम है। तो मैटर क्या कर रहा है हमारा, ये वैल्यू जितना मिनिमम, जो वेस्ट जितना मिनिमम, वेस्ट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, उतना ही तो ज्यादा जूस निकलेगा, इजंट इट सो? तो वेस्ट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फॉर द सेम वॉल्यूम किसका सबसे कम होगा, क्योंकि थिकनेस तो सबके लिए सेम है। जब TSA टोटल सरफेस एरिया इनटू थिकनेस हैज टू बी मिनिमम, और थिकनेस सबके लिए सेम है, थिकनेस सेम है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही मिनिमम चाहिए हमको। एंड फॉर द गिवन वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेयर का। फॉर द गिवन वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होता है फॉर अ स्फेयर। तो एक स्फेयर में सबसे कम वेस्ट होगा, एंड दैट इज वाई द शेप दैट द कस्टमर विल चूज विल बी अ स्फेरिकल शेप, नॉर्मल स्फेरिकल शेप, ऑप्शन ई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो राम एक फार्मर है, उसने इतने तरह के शेप के बनाए वाटरमेलन, बट अल्टीमेटली क्या चूज किया कस्टमर ने, नॉर्मल स्फेरिकल शेप। बाकी सब तो बर्बाद है, पड़े रहेंगे, कोई लेगा ही नहीं, लेंगे वही जो ऑलरेडी नेचर बनाती है। तो नेचर का तो अपना जो काम है वो सबसे बेस्ट है, इजंट इट सो? अगला सवाल करते हैं, नेचर से पंगा ले रहा था, क्या होगा। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल मेटल ऑफ रेडियस 10 cm is molten and made in 1000 smaller spheres of equal sizes. In this process, the surface area of the metal is increased by what %? तो इनिशियली एक स्फेरिकल मेटल है हमारा, आज इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल मेटल, हाँ स्फेयर ही है, ठीक है। तो स्फेयर का वॉल्यूम इनिशियली कितना है, इनिशियली वॉल्यूम है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू 10 का क्यूब, और 1000 हम इससे स्मॉलर स्फेयर बना रहे हैं, उनका रेडियस हमें पता नहीं, बट 1000 इंटू एक का रेडियस होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 गया, 4/3 गया, पाई गया, पाई गया, तो 1000 आर क्यूब इज 1000, 1000 आर क्यूब इज 1000, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 1, सो आर विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन पूछा इन दिस प्रोसेस सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 100, और फाइनली सरफेस एरिया कितना है 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, बट ऐसे 1000 है, सो रेशियो कितना आएगा, 4 पाई से गया 4 पाई, और ये 100 से भी काटेंगे, 2 0 गए, सो यानी कि 1:10 का रेशियो है, यानी कि पहले इनिशियल सरफेस एरिया 1 था और फाइनली सरफेस एरिया होगा 10 यूनिट्स। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सब तो कर लोगे मान लो, पर आखिर में क्या है, क्वेश्चन ने पूछा सरफेस एरिया ऑफ द मेटल हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट।
ये नहीं पूछा कितने गुना हो गया है, तो 10 इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले 1 था, 9 से इंक्रीज किया है, सो 9 टाइम्स इंक्रीज किया है, 9 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, और 9 टाइम्स। तो दैट इज व्हाट इट इज, कि आखिर में भी गलती बहुत सारे, एक ह्यूज चंक जो है, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि 10 को मार्क करके चले आएंगे और अपना सवाल गलत कर देंगे। क्लियर है? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सुरेश हु रन्स अ बेकरी यूजेस अ कोनिकल शेप्ड इक्विपमेंट टू राइट डेकोरेटिव लेवल्स, हैप्पी बर्थडे या जो भी कहानी लिखोगे, ठीक है, यूजिंग क्रीम। द हाइट ऑफ दिस इक्विपमेंट इज 7 सेंटीमीटर, कोनिकल शेप्ड है, डायमीटर इज ऑल्सो गिवन 5 mm, अ फुल चार्ज ऑफ द इक्विपमेंट विल राइट 330 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। तो वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उस हिसाब से वो इंक खर्च होगा या क्रीम खर्च होगी। तो वॉल्यूम कौन है, क्योंकि तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना डायमीटर है, डायमीटर है 5 mm, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज 7। सो वॉल्यूम आ गया, सिंस दिस इज 22/7, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 7, 7 से गया 7, 4 2 बचा, ऊपर आ गया 11, तो 11/6 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, और इससे 330 वर्ड्स लिख जाते हैं। Now the question is asking कि how many words can be written using 3/5 of the liter of a cream. So this is 11/6 centimeter cube, 3/5 of a liter, ठीक है। 1 liter is what? 1 liter is 1000 ml and 1 ml is 1 centimeter cube, ठीक है। तो this is 1000 centimeter cube, बट यहाँ पे कितना है 3/5 of a liter, यानी कि 600 ml, so 600 centimeter cube टोटल क्रीम हमारे पास अवेलेबल है, और उससे हम कितने वर्ड्स लिख पाएंगे, जबकि 11/6 सेंटीमीटर क्यूब से हम लिख पा रहे हैं 330 वर्ड्स। तो टोटल कितने फिल्स हमको मिलेंगे, टोटल कितनी फिलिंग्स मिलेंगी, 600 डिवाइड बाई 11/6, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फिलिंग्स जो कि हमको अवेलेबल होंगी। और फॉर 1 फिलिंग वी आर राइटिंग 330 वर्ड्स, तो मल्टीप्लाइड दिस बाई 330, 11 से काटेंगे यहाँ पे बचेगा 30, दिस विल बी 600 इंटू 30, और ये 6 भी ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6, तो 600 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 6, 6 6 36 इंटू 3 108, and last में 000, so this will be our answer. Clear है? ठीक है, कोई दिक्कत? So our answer will be 108,000. None of these, option E will be our answer. कोई समस्या? ठीक है, एक गड़बड़ यहाँ पे हो गया, एक चीज़ जो अपन ने गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ ये हुआ कि हमें दिया है कि डायमीटर ऑफ द बेस इज 5 mm, डायमीटर है, रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, तो दिस विल बी 1/4, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, दिस इज 1/4 इंटू 1/4, तो एक 1/4 और एडिशनल मल्टीप्लाई होगा सब जगह पे। सो आंसर हमें 4 एडिशनली मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल आंसर विल बी 432,000। इससे हमारा आंसर तो फर्क नहीं पड़ेगा, नौ दीजिए आंसर आएगा, बट ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। सो बेस का डायमीटर है 5 mm, रेडियस नहीं 5 mm है, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। सो आई बिलीव कि सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया है, ज़रूर कर लो। और बेल आइकन अगर अब तक नहीं, आपने घंटी का आइकन जो है उसको प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, बिकॉज अभी रिसेंट अगले कुछ दिन में वी आर गोइंग टू अपलोड टू मेनी वीडियोज़, और अदरवाइज भी फॉर फर्दर एग्जाम्स you will definitely find this channel very helpful. और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो you can always ask. That's all for this session. Bye bye. Take care. See you in another session.